when I saw your balance sheet. I think your generally your working capital is quite like for a large B2B business, your working capital is very the requirement is quite low. You have barely any receivables. Receivables are hardly 1 2 days of receivables. Inventory is hardly 15 16 days. This is definitely better than the other listed B2B jewelry players that I have seen. So what is the secret sauce? Like, आप लोग क्या कर रहे हो that is allowing you guys to keep such a strong, balance sheet? Welcome to Sunday Investing, to our Know Your Promoter series. We have Mr. Deepak and Sunny Grover, both of whom are promoters of Grover Jewels. One of them is the MD and the other is the CEO. Grover Jewels SME IPO is opening on the 4th of February and closing on the 6th of February. Welcome, Deepak ji and Sunny ji, and thank you so much for making the time and talking to us. Let me start by just asking, a little bit about yourself, your own background. How did you come into this business, and how did Grover Jewels come into existence? नमस्कार जी, मैं दीपक, एमडी ऑफ द कंपनी, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी जो है बहुत ही ग्राउंड लेवल से स्टार्ट हुई है। पहले हम इसी ज्वेलरी लाइन में ही जॉब में थे, और उसके बाद जो है फिर हमने पार्टनरशिप वगैरह की, तो जो नहीं सक्सेसफुल हुई, तो फिर लास्ट में हमने 2010 में फिर इस कंपनी को जो है स्टार्ट किया था। तो एक्सपीरियंस तो पहले से था ही, क्योंकि 2001 से ही थे इस लाइन में, तो 9 साल का एक्सपीरियंस तो वही था, मैन्युफैक्चरिंग का भी, और मैं सेल्स में था तो मार्केटिंग का भी था। तो ऐसा ऐसी कोई ज्यादा परेशानी नहीं थी बेचने में भी और बनाने में भी। तो वहां से ये कंपनी की शुरुआत हुई है 2010 से, और फिर जो है धीरे धीरे जैसे जैसे स्केल बढ़ता गया, काम बढ़ता गया, कंपनी ग्रोथ करती चली गई। But yeah, and it's very good to see, you bring this business from there all the way now to taking your company public. So can you tell a little bit more about what the company does? What are the segments, the key segments that Grover Jewels in? I know you guys do a little bit of manufacturing, a majority manufacturing, a little bit of job work, some of the different product categories. I think majority you are in chain. So can you just tell a little bit more about the business? Actually, company do manufacturing of gold ornament and jewelry. The thing is, we are manufacturer and there are a lot of wholesalers inside the market. ज्वेलरी के मार्केट में एक चेन बना हुआ है, मैन्युफैक्चरर मेक करता है ज्वेलर, उसके बाद होलसेलर परचेज करता है, देन रिटेलर, देन एंड यूजर। तो हमने दोनों को साथ में बैलेंस रखा हुआ है। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का भी रिवेन्यू है एंड हमारे पास जॉब वर्क का भी रिवेन्यू है। कंपनी अभी गोल्ड चेन बनाती है, रिंग्स बनाती है, कास्टिंग ज्वेलरी का पूरा सेगमेंट कवर करती है। एंड सेकेंड थिंग इज, जो जॉब वर्क का पैटर्न हमने अपने पास रखा हुआ है हमारे होलसेलर्स को रिटेन करने के लिए ही रखा हुआ है, सो डैट हम उनके लिए भी मार्केट में ज्वेलरी प्रोवाइड करा सके इजीली। तो कोई डिफरेंस नहीं आया कि भाई हम अपना ही बना करके सेल कर रहे हैं तो होलसेलर भी हमसे क्यों ले। इस डैट कि उनके लिए जॉब वर्क का ऑप्शन हमने रखा हुआ है। कंपनी के अपने 2 शोरूम्स हैं जो दिल्ली की बहुत अच्छी प्लेस से चल रहे हैं। Samjha. Or I think your biggest product category is chains. Is that right? Yes, the main product is chain, machine chains, and all segment of chains. Okay. Is there a reason that is the largest segment? Is that something you will diversify out of, or is that just a very structural thing in this category? No, actually, chain is very common actually, and it helps us in large revenue generations. Thing is, chain का जो rotation है वो बहुत easily होता है, बहुत फास्ट होता है। लाइक जितने दिन में ज्वेलरी का रोटेशन होगा उससे बहुत फास्ट चेन का रोटेशन होता है सर। एंड शुरू से ही दीपक जी जो है चेन मैन्युफैक्चरिंग में ही इन्वॉल्व थे, उनका की कोर एरिया जो है वो चेन का ही है। तो ही नोज की चेन के बेसिक वर्क होते कैसे हैं, ही नोज द ग्राउंड वर्क ऑल्सो। तो शुरू से ही कंपनी चैन बेस्ड बिजनेस पे फोकस रही है, बट फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स हमने कास्टिंग ज्वेलरी का भी एडिशन किया है एंड अभी हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ज्वेलरी के पूरे सेगमेंट में। समझ गया, समझ गया। और आपका काम कैसे होता है? हाउ डू यू गेट ऑर्डर्स? डू यू वर्क विथ होलसेलर्स?
with retailers? Are the orders on a regular basis? Are they made to order? Are there some kind of contracts in place? So can you just explain how you get your orders? मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, जैसे जो चेन का काम होता है वो बेसिकली उसमें काफी सारे डिजाइन जो है वो फिक्स होते हैं, साइज भी और डिजाइन भी। तो जो रूटीन के कस्टमर है उनको सब साइज भी पता है और डिजाइन के नाम भी पता है, तो उस हिसाब से वो ऑर्डर लिखवा देते हैं। और हम दोनों तरह से सेल करते हैं, जैसे अपने पास खुद की इन्वेंट्री है दोनों ऑफिस में, तो वहां पे कस्टमर जो होलसेल वाले आते हैं या रिटेलर आते हैं तो वो वहां पे आके माल छांटते भी हैं, और अगर उनसे उनका कोई ऑर्डर भी होता है अलग से स्पेशली तो वो भी हम बना के देते हैं उनको। तो दोनों तरह से ही काम करते हैं। गॉट इट। और आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या बस हर महीने हर हफ्ते लोग आते हैं और वापस ऑर्डर देते हैं? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो तो आपकी जो कंटिन्यूअस है वर्क होता है? कंटिन्यूस वर्क, रेगुलर जो आ रहे हैं कस्टमर जो इतने सालों से जुड़े हुए हैं उन्हीं के समझा साथ ही कंटिन्यू चलता रहता है। समझा वो समझा। एक फील्ड हो जाता है आपस में दोनों का। गॉट इट गॉट इट। और आप एक चीज, इस सेगमेंट में बहुत कंपटीशन होता है। आपने भी बोला चेन्स वो सबसे वो फास्टेस्ट मूविंग आइटम है, तो बहुत कंपटीशन होगा, बोथ ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। सो what is your differentiation? What do you guys do well, better than others in the industry? And what is your USP? हमारा डिफरेंशिएशन इसमें ये है कि हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं, तो एक तो कॉस्ट जो है वो हमें बिल्कुल नॉमिनल पड़ती है, जो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है। उसके बाद जो हम बना रहे हैं वो फिर हमारे से होलसेलर ले रहा है, होलसेलर फिर आगे रिटेलर को बेच रहा है, तो वो भी अपना मार्जिन रख रहा है। तो हमारे पास प्लस पॉइंट एक ये भी है कि हम अपना खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और खुद ही अपनी ऑफिस से जो है उसको सेल आउट कर रहे हैं, तो वहां वाला मार्जिन भी जो है वो कंपनी में ही ऐड होता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। एंड एडिशनली वी आर ऑर्गेनाइज्ड, हमने अपना पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइज किया हुआ है सर, चाहे वो सेल्स के लिए हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में जो है क्यूसी बहुत ही बेसिक चीज रहती है, तो हमारा पूरा सिस्टम सेट है कि कोई प्रोडक्ट जो फाइनल फिनिश हुआ है वो प्रॉपर क्वालिटी चेक होके हॉलमार्क होके ही शोरूम के लिए पहुंचे। वो फैक्ट्री आउटलेट से तभी बाहर जाता है जब वो अपने पूरे प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करके जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं बेनिफिट रहता है पूरा ऑर्गेनाइज्ड होने का कि भाई सारा काम अपने आप होता है, उसमें हमें इन्वॉल्वमेंट नहीं देना पड़ता अपना। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। और आप, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ योर बिजनेस इज Delhi and North India. I think the other states are quite small today. Are you guys looking to scale beyond this geography? So that is one part, one question. The other is, I think majority are in gold. Are you looking at any other, any other jewel, maybe diamond, lab-grown diamonds, any of these other sort of segments that are taking off? Are you looking at e-commerce? So just help us understand a little bit of, where the business will go going forward. अभी तक क्या था ना, जो नॉर्थ इंडिया में जो मेन बेस था कंपनी का, अभी जो हमने जो ऑफिस खोला चांदनी चौक में या जो एग्जीबिशन हमने लगाने शुरू किए, हम पूरी जैसे बॉम्बे में भी लगाते हैं, इधर दिल्ली में भी लगाते हैं, या नॉर्थ इंडिया में और होते हैं वो भी लगाते हैं। अभी नेक्स्ट मंथ हम बेंगलोर में भी लगा रहे हैं। तो कंपनी का प्लान तो जो है इन फ्यूचर पूरे इंडिया में और एक्सपोर्ट का भी काफी अच्छे लेवल पे करने का है। तो जो अभी तक का जो नाम आपने बताया, जैसे नॉर्थ इंडिया में ही था, तो पहले हम एग्जीबिशन नहीं लगाते थे, अभी 1-1.5 साल से हमने ये शुरू किए हैं। तो पूरे इंडिया में लोग जो है वो ग्रोवर ज्वेल्स को जानने लगे हैं, जैसा हमारा सोचना है। और काफी कस्टमर हमारे पास, मतलब इंडिया के मैं समझता हूँ अप्रोक्स 20 स्टेट्स में अपना सामान जाता है। पैन इंडिया हम काम कर रहे हैं इस टाइम पे, और धीरे धीरे आगे बढ़ने का जो है वो चल ही रहा है प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि कहीं हम उसमें रुक रहे हैं। तो जैसे जैसे कंपनी बढ़ती जा रही है वैसा वैसा उसका स्केल भी बढ़ता जा रहा है और एरिया भी बढ़ता जा रहा है। अभी एक्सपोर्ट पे भी ज्यादा कुछ हम उसमें विचार कर रहे हैं आगे बढ़ने का। ओके ओके। ऑलरेडी यूएई में और ऑस्ट्रेलिया में तो जा ही रहा है। अभी गवर्नमेंट का जो है टाई अप चल रहा है यूके से, तो वहां भी प्लान कर रहे हैं। तो फ्यूचर में जैसा भी होगा वैसा किया जाएगा। और दूसरा आपने पूछा कि नेक्स्ट जो है वो कंपनी किस ज्वेलरी में जाने के लिए सोच रही है। हाँ। तो अभी हमारा सोचना ये है कि हम
R&D सब चीज की कर रहे हैं, हम एंटीक की भी कर रहे हैं, हम डायमंड की भी कर रहे हैं, हम लैब ग्रोन की भी कर रहे हैं। पर हर एक चीज में जब तक आप बिल्कुल नजदीक नहीं जाते तब तक उसके इफेक्ट वर्ड्स पता नहीं लगते आपको। क्या मार्जिन है, क्या आपका एक्सपेंस है, क्या क्या लॉस हो सकता है। तो कंपनी जो है ये सारी चीजें पहले R&D करने के बाद ही किसी तरफ मूव करेगी, इतनी जल्दी तो ऐसे नहीं करेगी कि कुछ भी सामने दिखा। जैसे अभी पीछे लैब ग्रोन का काफी बूम आया था, तो अब जो है वो बुलबुला जो है वो धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है। तो अब फिर लोग जो है वापस नेचुरल डायमंड की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। तो कंपनी ऐसा नहीं चाहती कि किसी तरफ अपना स्टेप आगे मूव ऑन कर दें और फिर वापस बैक लेना पड़े, ऐसा ना करना पड़े। तो इसलिए बड़ा सोच विचार करके जिस भी सेगमेंट में अपने को लगेगा कि हाँ इसमें हम अच्छा कर सकते हैं, हम उधर ही बढ़ेंगे, चाहे वो एंटीक में हो, चाहे डायमंड में हो, नेचुरल में, चाहे लैब ग्रोन में हो, चाहे सिल्वर के ही कोई प्रोडक्ट क्यों ना हो। समझा समझा। तो आप हर you're looking at every option right now, you're working on it, but nothing that is, you want to be sure before you enter any new segment. कोई भी सेगमेंट हमने नहीं किया है, पर हम सब चीजों पे R&D हमारी चल रही है। समझा। इसमें हमें लगेगा कि हम इसमें आराम से कर भी सकते हैं और इसमें मार्जिन भी कंपनी को अच्छा आएगा, तो हम उधर ही बढ़ेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड Very, अंडरस्टूड। very soon we are going to announce very soon. Okay, okay. Then we'll wait for that. Then we'll wait for that. Uh, Deepak ji, Sunny ji, this is a question that will be there on everyone's mind. This is just based on how in the last 3 months prices of gold, silver. I know you're not that much in silver, but gold has itself shot up so much. It is so volatile. Today it was down another 10-12%. The prices have moved so much. So I have two questions again related to this. One is, do you do anything to hedge against the price? I know the price is going up, so maybe it is good for you, but do you do anything to hedge against this kind of extreme volatility? And the second is, are you seeing some kind of demand, acceleration or reduction because of the way the prices are moving? मैं इसमें ये कहना चाहूंगा आपके क्वेश्चन के बारे में कि एक तो पहली बात, हम हेज वाला सिस्टम नहीं अपनाते हैं क्योंकि हमने अपनी इन्वेंट्री बनाई हुई है। हमने जो शुरू में एक बार लगाना था अपना, जैसा जो फंड अपना जहां से आना था वो हमने उस टाइम पे लगा दिया। अब उसके बाद क्या होता है, अब कस्टमर ने जो हमारे से सामान लिया जो भी, तो उसमें जितना उसने सामान लिया उसका हम सामने सामने जो है उसको खरीद लेते हैं। जितना हमने कस्टमर को बेचा उतना हमने सामने से खरीद लिया, तो हमें हेजिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, पहली बात तो। और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था, सॉरी? वॉलेटिलिटी। हाँ, ये प्राइस वॉलेटिलिटी की वजह से कुछ डिमांड का इम्पैक्ट होता है क्या? मतलब बढ़ रहा है या ये कि इंडिया में थोड़ा सा सिस्टम ना उल्टा चलता है। इंडिया के लोगों की जो थिंकिंग है, वो जब महंगा होता रहेगा तब खरीदते रहेंगे कि और खरीद लो, महंगा हो गया, और खरीद लो, महंगा हो गया। ये आपने आजकल के दिनों में देखा भी होगा। चांदी लोगों ने मतलब 1,50,000, 70,000 या 1.5 लाख रुपया जब तक थी तब तक नहीं खरीदी, जब तक वो 4 लाख रुपए नहीं हुई। ये बहुत सारे लोगों की ये कहानी है। आप डिटेल में जब चेक करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो मुझे नहीं पता आप किस लेवल तक कनेक्टेड हैं इस लाइन से। अगर आप ज्यादा नजदीकी हैं तो आपको पहले से पता ही होगा इस बारे में कि इंडिया की जो पॉपुलेशन की जो सोच है, जो लोगों की सोच है, वो महंगा होते होते जो है वो खरीदते चले जाते हैं, और जब सस्ता होने की बारी आती है तो वेट करते हैं कि अभी और सस्ता होगा, अभी और सस्ता होगा। तो हमें दोनों तरफ से बेनिफिट ऐसे मिला है कि जैसे जैसे भाव बढ़ता चला गया वैसे वैसे लोग खरीदते चले गए कि और दे दो, और दे दो, और दे दो। मतलब खरीदने वाले ज्यादा आ गए। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हमें कस्टमर को रोकना पड़ा कि भाई आज हम सेल नहीं कर रहे। और दूसरा आपका पॉइंट था कि अगर भाव घटता है, एक सेकंड में मैं पूरा कर दूं। हाँ जी, हाँ जी। कि अगर भाव घटता है तो अपने को क्या फर्क पड़ता है? उसमें अपने को फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि जो लोग मान लो भाव बढ़ने की वजह से रुके हुए थे कि थोड़ा कम होगा तब खरीदेंगे, थोड़ा कम होगा तब खरीदेंगे, तो जब कम होता है तो फिर वो लोग खरीदने लगते हैं। तो अपने को तो दोनों तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मेन चीज तो ये है कि अपने को जितना बेचना है उतना खरीदना है। समझा समझा। और आप लोगों के लिए कोई इन्वेंट्री का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि अगर आपने 173 भाव 173 था 30th को, और अभी 120 आ गया, 115 आ गया, तो उससे तो 173 में हमने बेचा, 173 में खरीदा, और 120 में बेचेंगे तो 120 में खरीदेंगे। गॉट इट। तो सब बहुत फास्ट है। गॉट इट, गॉट इट। ठीक है, मैं अब अभी थोड़ा फाइनेंशियल्स में आ जाता हूँ। तो आई थिंक
obviously revenue बहुत has grown very fast, obviously probably partly helped by the rise in gold prices also, but I think from FY23 from 255 crore you've gone to about 460 crore in FY25. I think you've reached near that number already in the first 8 months of this year. So what is the reason for this rapid growth, and how sustainable is this? Do you think this is a growth number that you can maintain? ये एक्चुअली इसमें मैं दो चीजें बोलूंगा सर। जो रिवेन्यू है, एक बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाई हमने जिसकी वजह से ये ग्रोथ हमें मिली। वेरी फर्स्ट चीज, हमने जो अपना शोरूम चांदनी चौक में खोला। चांदनी चौक दिल्ली की एक बिल्कुल मार्केट प्लेस है, बिल्कुल ब्लस्ट मार्केट प्लेस है, हब है, जहाँ पे मतलब पूरे देश से ज्वेलर आते हैं, पूरे इंडिया से ज्वेलर आते हैं जहाँ परचेजिंग करने। तो वहां से हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवेन्यू मिला और हमारा पॉइंट नाम भी वहां पे बहुत फेमस हुआ। सेकंड, जो हमने नंबर ऑफ एग्जीबिशंस पार्टिसिपेट किए, लाइक IIJS एक बड़ा चैनल है जिसके थ्रू एग्जीबिशंस लगते हैं। दिल्ली जेम ज्वेलरी एग्जीबिशंस हैं, लाइक एक साल में 6 एग्जीबिशंस, एक खत्म करके आ रहे हैं, दूसरा जा रहे हैं। ऐसा हमने लगातार 2 साल किया, काफी इन्वेस्टमेंट किया एग्जीबिशंस में। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला। लाइक अगर मैं नंबर ऑफ कस्टमर्स की बात करूं तो जो इससे पहले लिमिटेड था, कहीं ना कहीं हम चैन बेस्ड सेगमेंट में थे तो वो लिमिटेड था, लेकिन एग्जीबिशन के बाद से आज हम नंबर ऑफ कस्टमर्स 700 प्लस के साथ डील कर रहे हैं सर। मतलब तो ये एक सस्टेनेबिलिटी है और कहीं ना कहीं लोगों का ट्रस्ट है। लाइक 10 साल से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइक 2010 में जो हमारे कस्टमर थे वो आज भी हमारे कस्टमर है सर। तो ज्वेलरी सेक्टर में एक ट्रस्ट ही चाहिए रहता है जिसकी वजह से सब कुछ होता है। तो हम वो नाम अभी ले चुके हैं मार्केट में कि हम उस रिवेन्यू को मेंटेन करके रखेंगे सर। एंड ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे रुक जाएगा, मतलब अभी अपकमिंग हमारे मार्केटिंग भी चल रही है, सोशल मीडिया से भी सब मार्केटिंग एंड पब्लिकेशंस चल रही है। सेकेंड, एग्जीबिशंस भी आगे के प्लान है। अभी साउथ को जैसे कवर करने के लिए बैंगलोर का एग्जीबिशन अलाइंड है मार्च में, आगे अगस्त में या सर फिर सितंबर में। तो एक साल का आगे पहले ही रोड मैप रेडी है, तो होपफुली इसको तो सस्टेन करेंगे। कंपनी जब से एस्टेब्लिश हुई है तब से वो कंटिन्यू आगे की तरफ ही बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं उसमें जो कस्टमर का जो ट्रस्ट लेवल है, जो कंपेटिबिलिटी है, जो क्वालिटी है, जो प्योरिटी है, सारी चीजें उसको मिल रही हैं, तभी तो वो 15 साल से कंटिन्यू हमसे जुड़ा हुआ है। नहीं तो मार्केट में जो आपने कंपटीशन की बात की थी, तो कंपटीशन तो काफी ज्यादा है हर लाइन में, सबसे मतलब बहुत ज्यादा कंपटीशन है। जरूरी नहीं है कि खाली चेन में ही है, किसी भी आप ज्वेलरी लाइन या कोई कपड़े की लाइन या जूते की लाइन, किसी भी लाइन में चले जाओ, कंपटीशन तो सब जगह होता है। पर सरवाइव कौन करता है? जो अपनी बात पे पक्का रहे, जो प्योरिटी वो बोल के दे वो हो, क्वालिटी आपकी अच्छी हो, और टाइम जो आपने बाउंड किया कि मैं इतने टाइम में दूंगा तो उतने टाइम में मिले। कस्टमर को ये होता है। समझा। I think you said it very well. I think that trust, if you are able to build trust, यही स्ट्रेटेजी पकड़ रखी है, तभी कंपनी कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है। समझा. No, you guys have reached a very significant scale, and I think you mentioned that word, no, trust. I think if your customers trust you, then that is 90% of the problem solved. अब जो है कस्टमर जोड़ने के जो फार्मूले हैं वो थोड़े चेंज होते चले जा रहे हैं कि सोशल मीडिया में भी ज्यादा अब लोग इन्वॉल्व होने लग गए हैं, और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो अब कंपनी को थोड़ा जो है वो फैलने का मौका ज्यादा मिल रहा है इन सब चीजों के साथ। Correct. No, we have to keep with the times, but I think you've built a large platform, which is good for future growth. एक चीज, this is one thing that even I was quite surprised when I saw your balance sheet. I think generally your working capital is quite, like for a large B2B business, your working capital is the requirement is quite low. You have barely any receivables. Receivables are hardly 1-2 days of receivables. Inventory is hardly 15-16 days. This is definitely better than the other listed B2B jewelry players that I have seen. So what is the secret sauce? Like, aap log kya kar rahe ho that is allowing you guys to keep such a strong balance? I'm only looking at your full year numbers, not looking at the 8-month number for this year, but the trend is quite strong. तो इसमें तो पूरा क्रेडिट स्टाफ को जाता है, लाइक क्योंकि हमारा जो स्टाफ है फुली, मैंने कहा ना, ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमैटिक है। तो रिसीवेबल्स जिन से रिसीवेबल्स है उनको प्रॉपर कॉल जाता है, पूरा मैनेजमेंट मतलब फुल हम उसको कंट्रोल करते हैं कि फॉलो अप रहता है कस्टमर के साथ, जिनसे भी हमने पेमेंट लेनी है उनसे टाइमली आ जाए।
तो ये सब एक पूरा टीम बैठ के मेंटेन करके रखती है सर, उसमें हमारा कोई सहयोग नहीं है, वो पूरा क्रेडिट टीम को जाता है। और मैक्सिमम तो जो सेल होती है वो अगला सामने वाला पेमेंट पहले करता है, उसके बाद ही हम उसको माल डिलीवर करते हैं मैक्सिमम टाइम। तो अब जो काफी जो पुराने चल रहे हैं उनके साथ हो सकता है वो जो जो ये 2-4 दिन का भी जो आ रहा है वो उन्हीं की वजह से आ रहा है जो पुराने चल रहे हैं। वैसे दूसरे कस्टमर जो जो रूटीन वाले हैं उनको तो हम पहले पेमेंट बोलते हैं डाल भाई फिर माल मिलेगा, हम छोड़ते ही नहीं है सामान। अब तो प्राइस की फ्लक्चुएशन इतनी है, लाइक 5,000 पर डे की फ्लक्चुएशन है, ऐसे में तो हम क्रेडिट दे भी नहीं सकते है ना, तो वेरी रिस्क ट्रू, हम नहीं वेरी लेते। ट्रू। समझा। और ये इन्वेंटरी डेज भी काफी कम है, 15 दिन का है, तो अगेन उसका भी कैसे, लाइक हाउ डू यू मैनेज इट सर? इज इट बिकॉज यू वर सेइंग चेन्स इज योर मेजर सेगमेंट, लाइक व्हाट इज द रीजन? रोटेशन है ना सर, मैंने कहा जैसे, तो इन्वेंटरी रोटेट होने में ज्यादा टाइम नहीं लेता है, क्योंकि चैन ऐसे नाम से बिकता है सर। रिटेलर आएगा, वो बोलेगा कि 10 ग्राम का ये पीस, 5 ग्राम का ये पीस, निकालते निकालते वो कब 500 ग्राम वजन हो जाता है नहीं पता चलता। तो वो रोटेशन ऐसे घूमता है सर, तो 10 दिन 15 दिन के साइकिल में हो जाता है। समझा, समझा। स्टिल सो वी आर वर्किंग कैपिटल, अभी भी एक्सपेंशन भी हमारा वर्किंग कैपिटल में है, कि जितना ज्यादा स्टॉक हमारे पास रहेगा उतना ज्यादा हम सेल कर पाएंगे। understood, understood, makes sense. But then this will always then be a fairly thin margin business, like the EBITDA, I think you operate in that 2-3% range, so this, that is a stable sort of margin to expect. या वर्किंग ऑन दैट एक्चुअली। चैन का जो मार्जिन है बहुत कम रहता है, होलसेल में तो बहुत ही कम रहता है, बट Right. अभी ऐसा नहीं, हमने उसको एक्सपेंड कर दिया है। कास्टिंग ज्वेलरी जो हमने एडिशन किया है उससे हमें मार्जिन काफी अच्छे मिल रहे हैं। अभी हम डिफरेंट डिफरेंट मार्जिन पे काम कर रहे हैं, लाइक चेन है 1 to 2% वाला मार्जिन आइटम है, कास्टिंग That's ज्वेलरी है जो 2-5% वाला मार्जिन आइटम है। तो अभी okay. बैलेंस मिक्स करके हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, एंड अभी आगे ग्रो करने के पूरे पूरे चांसेस है सर। और एक अच्छी हम पकड़ कास्टिंग ज्वेलरी ने हमारी मार्केट में ले भी ली है, अभी कास्टिंग भी ग्रोवर ज्वेल्स के नाम से ही बिकती है। okay, okay. फिनिशिंग और वो क्वालिटी हम देते हैं कि सामने वाले को बस नाम ही देखना है, पीस को चेक करने की जरूरत नहीं है। Understood, understood. No, that is, I think, very interesting. I think what you guys have built so far, and I think I at least understood the business well. I want to just ask you one last question. You're going to become a public company now. You will have a lot of shareholders who are going to now be a part of your journey. Is there any message that you want to give them? Anything you want to tell them as they join you on this journey? बहुत क्लियर मैसेज है। ग्रोवर ज्वेल्स का विजन लाइक बहुत छोटा तो नहीं है, बहुत बड़ा विजन के साथ हम अभी यहाँ पे स्टे कर रहे हैं सर। जो कंपनी 2 मशीनों के साथ शुरू हुई थी सर, 2 मशीन लोकल इंडियन मशीन चैन बनाने की जिनसे शुरुआत की गई थी, आज वो कंपनी बड़े प्राउडली कह सकती है कि हम लोग पूरा ब्रांडेड, लाइक एक नाम बताऊंगा सर, सिस्मा नाम है इटली का, उससे मशीन लेकर के पूरी चैन बना के पब्लिक को दे रहे हैं। तो जब हम पूरा ब्रांडेड यूज कर रहे हैं, सब पूरी हाई क्वालिटी मशीनरी जो इंपोर्टेड ही है, लाइक वही यूज करके हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्वालिटी कंट्रोल तो हमारा कोर पॉइंट है ही। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है सर हमारा, जो बहुत से ज्वेलर्स के पास नहीं है। तो एक प्लस पॉइंट है जो कंपनी के पास हमेशा रहेगा अपना सर। और इतने साल का एक्सपीरियंस है हमारे प्रमोटर्स का, लॉन्ग विजन्स है, क्वालिटी है सर, ट्रस्ट है, जो कि मतलब ट्रस्ट तो एक बड़ा फैक्टर आएगा ज्वेलरी इंडस्ट्री में। तो कंपनी अपने विजन के साथ सर आगे बढ़ेगी, एंड होपफुली इन्वेस्टर्स को भी ये समझ में आएगा कि जो हमने बोला है वही हमारे नंबर्स भी दिखा रहे हैं सर। ऐसे सिर्फ बोला नहीं गया है, नंबर्स भी सेम ही दिखा रहे हैं सर। Thank you so much for those words, Sunny ji. Thank you, Deepak ji and Sunny ji. With that, we'll wrap up this interview. Just to recap, we had Deepak ji and Sunny ji from Grover Jewels, whose IPO is opening on 4th February and closing on 6th February. Thank you, gentlemen, both for your time. And I wish you all the best for the IPO and your journey as a listed company. We thank you. Thank you very much.